یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ جموں کشمیر انتظامیہ ہر شخص کو بہتر صحت خدمات فراہم کرنے کے لیے کوشاں، کسی امتیاز کے بغیر ہر ایک کو صحت کی خدمات سے مستفید ہونے کا حق حاصل۔ لیفٹیننٹ گورنر جموں میں صحت کنکلیو سے کیا خطاب۔ پونچھ میں مٹی کے تودے کی زد میں آ کر ماں اور بیٹی ہلاک، حادثے میں 2 افراد زخمی۔ ایل جی نے واقعے پر کیا رنج و غم کا اظہار۔ بھارت نے پاکستان اور چین کے غیر ضروری حوالوں پر جتایا اعتراض، جموں کشمیر اور لداخ کو ملک کا اٹوٹ اور غیر منقسم حصہ دیا قرار۔ اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے علیحدگی پسند لیڈر شبیر احمد شاہ کے مکان کو عارضی طور پر کیا سربے مہر، انسدادی منی لانڈرنگ کے قانون کے تحت کی گئی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کنونشن سینٹر جموں میں آج آیوشمان بھارت پی ایم جن آروگیہ یوجنا کے تحت جموں کشمیر میں صحت اسکیم کی کامیابی منانے سے متعلق 2 روزہ ہیلتھ کنکلیو جشن صحت کا افتتاح کیا۔ تقریب کا اہتمام اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی جموں کشمیر نے نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر اور محکمہ صحت و طبی تعلیم کے باہمی اشتراک سے کیا ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ سرکار ایک خوشحال سماج کی تعمیر کے لیے کوشاں ہے، جہاں ہر ایک شخص کو بہتر صحت خدمات تک آسان رسائی ہو۔ ہر ایک ناگرک کے ادھیکاروں کا اتسو ہے، مودی کیئر کے بھروسے کا اتسو ہے، بنا کسی بھید بھاؤ کے ناگرکوں کے رائٹ ٹو ہیلتھ کی سنکلپنا کو ساکار کرنے کا اتسو ہے، بنا کسی آرتھک بوجھ کے انیہ بنیادی سویدھاؤں پانی، بجلی، شکشا، آواس کی طرح ہیلتھ کی سویدھا بھی جموں کشمیر کے ناگرکوں کو دی جائے، یہ اس کا اتسو ہے۔ ایک لمبا دور تھا یہاں کا ہیلتھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیش کے انیہ راجیوں کے مقابلے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت پربھاوی نہیں تھا، لیکن ماننیہ پردھان منتری جی نے جب دیش کی باغ ڈور سنبھالی تو جموں کشمیر کے انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ یہاں کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بھی مضبوط بنانے میں اپنا پورا یوگدان دیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ کسی امتیاز کے بغیر ہر ایک کو صحت کی خدمات سے مستفید ہونے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانکلیو کے دوران صحت خدمات کی بہتر ڈیلیوری میں درپیش چیلنجوں کی نشاندہی کے علاوہ مستقبل کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ منوج سنہا نے کہا کہ جہاں دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک اب بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج یقینی بنانے کی سمت میں کام کر رہے ہیں، وہیں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کسی مالی مشکل کے بغیر ہر ایک کے لیے صحت خدمات تک مساوی رسائی یقینی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحکم سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے پبلک ہیلتھ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جموں کشمیر میں صحت کارڈ کی اسکیم کی کامیابی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مؤثر پالیسی کے بعد اس پر من و ان عمل آوری نے ہمیں صحت کے سیکٹر میں امیر اور غریب کے درمیان فرق مٹانے میں مدد دی ہے۔ کانکلیو میں انتظامیہ کے اعلی افسران اور متعلقہ ایجنسیوں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ ضلع پونچھ میں آج صبح مٹی کا تودا گر آنے کے واقعے میں ایک گھر کی 2 خواتین کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ضلع کے بفلیاز علاقے کے ڈونر گاؤں میں یہ حادثہ پیش آیا، جس میں محمد لطیف نامی ایک شخص کا رہائشی مکان اس تودے کی زد میں آ گیا، جس میں فوت ہونے والی 2 خواتین رشتے میں ماں اور بیٹی تھی۔ ایس ایچ او سرنکوٹ راجویر سنگھ نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ اس حادثے میں مزید 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں علاج معالجے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس واردات کے بعد علاقے میں صف ماتم بچھ گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس واردات پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ پونچھ کو واردات کے متاثرین کو ہر ممکن امداد پہنچانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دریاسنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں آج پورن کشن بٹ نامی اس کشمیری پنڈت کے گھر جا کر لواحقین کی ڈھارس بندھائی، جس سے پچھلے ماہ بندوق برداروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ایل جی نے متاثرہ کنبے کی مدد کے لیے مہلوک پنڈت کی اہلیہ کو مستقل سرکاری نوکری فراہم کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ مدھیہ پردیش میں 2 بچوں سمیت 11 افراد ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ ایک کار میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی ایک خالی بس سے جا ٹکرائی۔ یہ حادثہ آج الصبح بیتول ضلع کے جھلر کے مقام پر پیش آیا۔ بیتول پولیس کے مطابق یہ حادثہ بھینسدہی روڈ پر ضلع صدر دفتر سے تقریباً 36 کلومیٹر دور پیش آیا۔ 6 مرد 3 خواتین اور ایک 5 سالہ بچی نیز ایک شیرخوار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں جانیں ضائع ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے متاثرین کے لیے وزیر اعظم کے قومی راحت فنڈ سے امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔
वजीर अजम ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की रकम और जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए की रकम का ऐलान किया है। एक ट्वीट में वजीर अजम मोदी ने मुतासरा कुंभों के तई ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के चौथे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और पंचायती हलकों में आज भी मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। अनंतनाग जिले में प्रोग्राम के चारों मराहिल पूरे हो गए। जिले के 335 पंचायत हलकों में आज बैक टू विलेज 4 के चौथे मरहले के तहत कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। जिले में बैक टू विलेज 15 अक्टूबर से शुरू हुआ था। डिप्टी कमिश्नर बशारत कयूम ने आज मुतअद्दिद पंचायतों का दौरा किया और प्रोग्राम के तहत जारी सरगर्मियों का जायजा लेने के अलावा शुरका से तबादले ख्याल किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 65,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन में लैंड पासबुक तकसीम किए गए, जबकि 4,000 से ज्यादा तलबा जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था की निशानदेही की गई और दोबारा स्कूल में इंदराज कराया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम महकमों के अफसरान ने तालमेल के साथ काम करते हुए इस मरहले को कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम का चौथा मरहला नौजवानों पर मरकूज था। उन्होंने कहा कि इस मरहले में 4,000 नौजवानों को मुख्तलिफ रोजगार स्कीमों में लाया गया ताकि वो अपने साथ दूसरे कई नौजवानों को भी रोजगार फराहम कर सकें। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत जिले में 24,000 से ज्यादा जानकारी कैंप मुनक्किद किए गए, जिनके जरिए लोगों को जन भागीदारी के हवाले से आगाह किया गया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज श्रीनगर में 4 रोजा खेलो इंडिया वुशु विमेन्स जोनल लीग का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वजारत खेलकूद और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बाहमी इश्तराक से किया है। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के अलावा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, उत्तराखंड और दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले 500 जनाना एथलीट शिरकत कर रहे हैं। मौसूफा ने श्रीनगर में इस तरह की चैंपियनशिप के इनेकाद पर वुशु एसोसिएशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम से न सिर्फ हुकूमत जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कोटा के तहत एथलीटों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगी, बल्कि समाज से मुख्तलिफ बुराइयों के खात्मे के साथ नया जम्मू कश्मीर भी तश्कील पाएगा। भारत ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के चीन के दौरे के दौरान जारी किए गए मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुतल्लिक बहुत से गैर जरूरी हवालों पर एतराज किया है। नई दिल्ली ने इस बात का इयादा किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट और गैर मुनक़सिम हिस्से हैं और हमेशा रहेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान इरंदम बागची ने मीडिया से कहा कि भारत ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी कॉरिडोर के बारे में चीन और पाकिस्तान को अपने एहतिजाज और तशवीश से वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया है, जिनमें भारत के खुद मुख्तार इलाके से मुतल्लिक प्रोजेक्ट शामिल हैं जो कि जबरन और गैर कानूनी तौर पर बाहरी कब्जे में हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर अहमद शाह के मकान को आरजी तौर पर सर्बे-मोहर कर लिया है। उनका यह मकान बट शाह कॉलोनी सनत नगर श्रीनगर में वाक़ा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि मकान की सूरत में शब्बीर शाह की यह गैर मनकूला जायदाद इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत अटैच कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहकीकात पर मामूर एजेंसी ईडी के मुताबिक शब्बीर अहमद शाह को कश्मीर वादी में संगबाजी, एहतिजाजी धरनों, हड़ताली काल देने और इस तरह की दीगर सरगर्मियों का मुर्तकिब पाया गया है। इसके अलावा उन पर सरहद पार से मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से फंड हासिल करने में भी मुलव्विस पाया गया है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एसएमएचएस अस्पताल जाकर वहां जेर इलाज बीमारों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात और खदमात का जायजा लिया और बेजाते खुद कई बीमारों की भी इयादत की और उनको अस्पताल से बहम पहुंचाई जा रही तिब्बी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट और दीगर अमले के साथ भी बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों से ताकीद की कि वो बीमारों को हर सतह पर तिब्बी खदमात की दस्तयाबी यकीनी बनाएं और अपना फर्ज निभाने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त न करें, क्योंकि बीमारों को डॉक्टरों से काफी तवक्कात होते हैं और मरीज डॉक्टरों की शफकत और हमदर्दी से ही सेहतयाबी की उम्मीद रखते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा है कि मुनासिब सड़क राबितों से तालीम और हिफ्जान सेहत के मकासद हासिल करने में मदद मिलती है।
اس سے معاشی مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पहाड़ी इलाकों की नक्शबंदी के काम में तरक्की से मुतल्लिक खुसूसी चैलेंजों का सामना है, फिर भी खास तौर पर जब इंसानी तरक्की की बात होती है तो मिजोरम ने सभी मेयारात पर काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। आज मिजोरम कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि गांवों की सड़कों, शाहराहों और पुलों से न सिर्फ तालीम और हिफ्जान सेहत मकासद को हासिल करने में पूरी मदद मिली है, बल्कि खित्ते में इक्तिसादी मौके भी पैदा हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के दो रोजा दौरे पर आज दोपहर गैंगटॉक पहुंच गई। वो मुख्तलिफ मरकजी और रियासती सरकार के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद रखेंगी। वो इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की यह रस्म गैंगटॉक से वर्चुअल वसीले से अंजाम देंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरिया के कमांडरों से कहा है कि वो बहरी शोबे में उभरते हुए चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटने के लिए मुस्तकबल की सलाहियतों के फरोग पर तवज्जो मरकूज करें। वजीर दिफा ने कल नई दिल्ली में बहरिया के कमांडरों की 2 साल में होने वाली कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी दिन भारतीय बहरिया के सीनियर अफसरान के साथ बातचीत में ये बात कही। वज़ीर दिफा ने हालिया बरसों में साजो सामान की मुल्क में तैयारी और इख्तिरा के तय किए जाने वाली कोशिशों के लिए बहरिया की तारीफ की और कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक तकनीकी मुजाहरे का मुआयना किया। और एक इत्तला, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के शोबे खबर में जिन उम्मीदवारों ने कैजुअल बुनियादों पर मुख्तलिफ जुमरों के लिए दरख्वास्तें दी हैं, उनका तहरीरी इम्तहान अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में 5 और 6 नवंबर यानी शनिचर और एतवार को लिया जाएगा। कश्मीरी न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों का तहरीरी इम्तहान शनिचर 5 नवंबर को सुबह 11 बजे और उर्दू न्यूज रीडरों का तहरीरी इम्तहान 5 नवंबर को ही दिन में 2 बजे लिया जाएगा। पहाड़ी और गोजरी न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों के लिए तहरीरी इम्तहान का वक्त 6 नवंबर एतवार को सुबह 11 बजे होगा, जबकि कैजुअल न्यूज एडिटरों का तहरीरी इम्तहान एतवार को दिन में 2 बजे लिया जाएगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे इम्तहान से आधा घंटा पहले पहुंच जाएं और अपने साथ आधार कार्ड रखें। तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग की आलमी ताकत बनने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग के अपने माहौलियाती निजाम को वसअत देने के साथ साथ इसकी जानिब से फराहम की जाने वाली अशिया और खदमात के लिए आला मेयाराती ज़ाबिते नाफिज करने होंगे। वो कल नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत की लेबोरेटरियों में उभरते हुए आलमी रुझान पर मेयारात के भारतीय ब्यूरो के सेमिनार के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। भारत के रिजर्व बैंक की मौली पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने अपने फ्रेमवर्क के जरिए तय किए गए महंगाई के हदफ को पूरा न करने की वजह से हुकूमत को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर तबादले ख्याल और मुसव्विदा तैयार करने के लिए एक मीटिंग की। यह मीटिंग आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में हुई और इसमें एमपीसी के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। कानून के मुताबिक आरबीआई खुर्द अफरात ज़र को 2 से 6% के निशाने के अंदर रखने का इख्तियार देता है, ताहम अफरात ज़र 3 सहमाइयों में बालाई हद को पार कर गई, जिसकी वजह से मरकजी बैंक के लिए जरूरी बन गया कि वो हुकूमत को लिखे और इस इजाफे के असबाब और अफरात ज़र को 6% से नीचे लाने के लिए अपने रोड मैप के बारे में तफसीलात बताए। पूरे आलम में 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी महाराज का यौम पैदाइश पूरे मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी भर के गुरुद्वारों में भजन कीर्तन का एहतमाम किया जा रहा है। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनवारी में मुनक्किद की जाएगी, जहां अकीदतमंदों की बड़ी तादाद भजन कीर्तन में शरीक होंगे। T20 क्रिकेट आलमी कप में एडिलेड ओवल में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से हरा दिया। आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 150 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन ने 35 गेंदों पर शानदार 61 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवरों में 168 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 164 रन ही बना पाई। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म।